हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 बिहेव में से चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, rush your crowds hostel for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than even 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a young Scottish farm. But this aspiring music faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो इस वीडियो में मतलब इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया कि एक लड़की है, वो अभी अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। वो 17 ईयर से भी यंगर है। वो काफी नर्वस है लेकिन काफी एक्साइटेड भी है। जैसे वाइब्रेशंस उसको पता चल रहा है कि ट्रेन और नजदीक आती जा रही है। वो उसका पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, मतलब वो म्यूजिक सीखने जा रही थी लंदन में। वो उसके लिए काफी डॉन्टिंग मतलब फ्राइटनिंग था, मतलब क्योंकि एक फ्रॉम अ फ्रेश स्कॉटिश फार्म, क्योंकि उसका पहला दिन था तो काफी उसको डर लग रहा था कि क्या होगा आज। और वो उस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंज तो ये था क्योंकि वो प्रोफाउंडली डेफ थी। प्रोफाउंडली मतलब काफी हद तक डेफ थी, मतलब वो पूरी डेफ नहीं थी लेकिन उसको कम सुनाई देता था। इवेलिन, तो इस लड़की का नाम इवेलिन है। 11 गैनी, ठीक है। 11 Gany's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard. It says Isabel Glennie. Isabel Glennie उसकी मॉम का नेम है, ठीक है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her mistress urged her parents to take to her a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that they should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. तो होता क्या है कि उसको जो लॉस ऑफ हियरिंग थी वो ग्रेजुअल था उसका। उसकी जो मदर थी उसको याद आता है, मतलब याद था कि जब वो 8 साल की थी ना, जब वो 8 इयर्स ओल्ड थी, तब वो अपने पियानो बजाने की टर्न के लिए वेट कर रही थी। तो जैसे ही जब उन्होंने बोला, उनका नाम बुलाया कि शी, जब उन्होंने बोला दे कॉल्ड हर नेम, शी डिडंट मूव, मतलब वो ऐसी हुई नहीं। फिर उसको रियलाइज हो कि उसने सुना ही नहीं है, हैडंट हर्ड। उसने फॉर अ क्वाइट वाइल उसने काफी हद तक, जब वो ग्रो कर रही थी, डेफनेस उसकी ग्रो हो रही थी, वो काफी हद तक ऐसे था कि मतलब नॉर्मली रह पा रही थी फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 11 के जो मार्क्स थे वो डिटियोरेट होते गए, मतलब कम पे कम होते गए। उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उसके पेरेंट्स को बोला कि उसे एक स्पेशलिस्ट को दिखाओ। वो फिर डिस्कवर हुआ कि उसके जो सुनने की शक्ति वो काफी इम्पेयर्ड है, क्योंकि उसके एक नर्व में काफी डैमेज है। तो उसको एडवाइस किया गया कि उसे हेयरिंग एड्स लगा दिए जाए और जिस स्कूल में डेफ बच्चे पढ़ते हैं वहां पे भेज दिया जाए। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but a percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. Says 11. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the higher waist higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated this exercise and soon 11 discovered that she could sense some certain notes in the different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination of hard work. तो जो एवेलन थी वो मतलब अपनी लाइफ को ऐसे गिव अप नहीं करना चाहती थी। उसने अपने आप ने
ठान लिया था कि उसे नॉर्मल लाइफ ही जीनी है। तो उसने एक लड़की को देखा कि वो जाइलोफोन एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑन डिफरेंट लेंथ्स। उसने देखा कि वो प्ले कर रही है और उसने डिसाइड किया कि वो भी उसे खेलना चाहती है। उसको बहुत सारे टीचर ने डिस्करेज किया, पर एक परकशनिस्ट रॉन फॉब्स, ठीक है, उसने उसको पोटेंशियल को स्पॉट किया कि हाँ ये कुछ कर सकता है। परकशनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला एक्सेट्रा। और पोटेंशियल मतलब क्वालिटी, पावर कितनी, एबिलिटी कितनी है उस बंदे की। तो उसने उसका पोटेंशियल स्पॉट किया और फिर उसने 2 लार्ज ड्रम्स को बजाने से शुरू किया। उसने उसको बोला कि अपने कानों के थ्रू मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तो उसने देखा कि जो हायर ड्रम है उसे वेस्ट अप से फील होता है और जो लोअर वाला है उसे वेस्ट डाउन से फील होता है ना। उसने ये देखा। उसके बाद उसने यही एक्सरसाइज कंटिन्यू करके रखी। फिर उसको धीरे धीरे समझ आया कि सर्टेन नोट्स, मतलब जैसे ट्यून्स होते हैं ना कि कौन सा कब कब बजाना है, उसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में उसे फील होने लगी। उसने बोला कि वो सीख गई थी कि कैसे माइंड और बॉडी ओपन करना है साउंड और वाइब्रेशंस के लिए। अब अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ 4। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. She gradually moved from the orchestral work to the solo performances. At the end of 3-year course, she had captured most of the top awards. तो इसमें होता क्या है कि वो कभी अब उस पॉइंट से पीछे नहीं देखती थी। उसने यूनाइटेड किंगडम में गई और यूथ ऑर्केस्ट्रा में जब वो 16 थी, जब वो 16 ईयर्स की थी तब उसने सोचा कि म्यूजिक को ही अपना लाइफ बनाएगी। उसने रॉयल अकेडमी के लिए ऑडिशन दिया और स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। उसने हिस्ट्री में उनकी सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया। She gradually moved from orchestral work to solo performances. Solo performances मतलब वो अब सोलो में परफॉर्मेंसेज जेल वगैरह में, मतलब प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में सोलो परफॉर्मेंसेज देने लग गई और उसने धीरे धीरे करके टॉप से टॉप अवार्ड्स उठा लिए, मतलब वो जीत लिए उसने अवार्ड्स। And for all this, 11 won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you get there. And she got right to stop the world's most sought-after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. तो तो होता ये है कि मतलब उसका ना अब वो काफी ऊपर आ चुके थे और उसे 1,000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स उसको बजाने आ जाते हैं। अब आगे की स्टोरी में होता ये है, it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In 2 hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till it was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. ना, तो क्या होता है कि वो कि वो उसे बड़ा अजीब इंट्रोग्रिंग लगता है, मतलब फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, मतलब समझ के बाहर लगता है कि वो कोई भी वर्ड ऐसे छोड़ती नहीं थी। जब 2 घंटे की डिस्कशन होती थी वो कभी एक वर्ड तक नहीं छोड़ती थी। और जब वो जैसे बोलते जोक, और एक जोक बोला, मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, तो वो हंसी, मतलब उसको सब सुना। वो सिर्फ लिप्स को देख के नहीं समझती कि क्या बोल रहे, बट होल फेस, एक्सपेशली द आईज, वो फ्लॉलेसली, मतलब बिना किसी फॉल्ट और मिस्टेक के बोलती है स्कॉटिश लिट। वो कहती है कि वो इसलिए है क्योंकि वो 11 तक सुन सकती थी, है ना, बट उसको किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि वो फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज उसने कैसे लर्न की। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tinkles in my skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her body, stick into her fingertips.
By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through the bare feet up her legs. तो अब वो ये बोलती है कि उसको उसके अब हर पार्ट में उसके जो म्यूजिक है वो टिंगल होती है उसके स्किन में, जैसे कॉजेज अ स्लाइट प्रिकलिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। मतलब वो जो टिंगल जो उसके स्किन में, जब वो उसकी जो धुन होता है गाने की, वो स्किन में टिंगल करता है, चीक बोन्स में भी करता है और कभी कभी तो हेयर में भी करता है, बालों में। लेकिन जब वो जाइलोफोन प्ले करती है तो वो उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो स्टिक से उसकी उंगली के फिंगर टिप्स तक पास करती हुए उसे महसूस होती है। जब वो ड्रम्स बजाती है तो ड्रम्स के ऊपर बाहर डालते हुए उसे उसके जो रिजोनेंसेस होते हैं, इकोज ऑफ साउंड्स, वो उसे फील होते हैं अंदर जाते हुए। जब वुडन प्लेटफॉर्म होता है, मतलब लक्कड़ की जमीन होती है, तब वो अपने जूते उतार देती है ताकि जो वाइब्रेशन जो है वो उसके नंगे पांव से उसके ऊपर उसके शरीर के अंदर आ सके। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Academy Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. She's master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो कि मतलब इतना सरप्राइजिंगली नहीं, इन 1991 उसे एक रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उसका जो मास्टर था परकनिस्ट जेम्स ब्लेड, उसे कहते हैं कि उसकी आवाज, उसकी सुनने की शक्ति भले ही गॉड ने ले लिया, पर इसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया है। तो हमें सुनता है वो उसे और डीपली और मीनिंगफुली उसे समझ सकती है। दैट इज द रीजन कि वो म्यूजिक को इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है। Evelyn confesses that she is something of the workaholic. Workaholic का मतलब है informal, a person who finds it difficult to stop working. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes of young musicians. Anne Rickling of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is shining inspiration of deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. तो वो कॉन्फेस करती है 11 दैट कि ये समथिंग वारहॉक्लिक है, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक वो रिवॉर्ड उसके लिए और एनॉर्मस है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स, मतलब उसके कॉन्सर्ट्स तो होते ही रहते हैं, वो फ्री कॉन्सर्ट भी देती है प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में, ताकि उनको भी कुछ एंटरटेनमेंट मिले। और वो बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देती है जो यंग म्यूजिशियंस है। एंड रिकलिंग ऑफ बीथोवन एक जगह है, फंड मतलब एक फंड टाइप है, वहाँ पे डेफ चिल्ड्रन के लिए कहता है कि वो उनके लिए शाइनिंग इंस्पिरेशन है। मतलब उनको भी उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि एक डेफ गर्ल ने इतनी बड़ी म्यूजिशियन बन चुकी है। अब हम आ चुके अपने आखिरी पैराग्राफ पे। Eleven Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion into front of orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. तो ये जो लड़की इवेलिन है, उसने ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द पीपल ट्वाइस हर एज, उनको बहुतों को ट्रेन किया है, मोस्टली जो उसके एज के डबल थे, उसने परकशन ऑर्केस्ट्रा के अंदर लेके आई है, मतलब ताकि सिखा सके सबको। उसने सबको इंस्पिरेशन दी है जो हैंडीकैप्ट है, और उसके तरफ देख के बोलते थे अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसने एटलीस्ट एनॉर्मस प्लेजर दिया, मतलब सबको बहुत बड़ा प्लेजर दिया टू मिलियंस ऑफ पीपल। तो ये था हमारा चैप्टर का पार्ट 1 द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जल्दी इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।